class. I am Bhavna from Pride India Center School. So today I'll be taking your maths classes and the topic of our discussion will be geometry. So from today we'll start the geometry portion of your chapters. So basically in geometry we have three chapters. One is triangle, one is circle and another one is the construction. So first we'll start with the triangle part and then we'll move to circle and then construction. So before going to triangle, first of all I want to discuss, or I want to tell you basically what is geometry. So geometry is that branch that deal with the shape, size, dimension of any object. Either it will be a flat surface. If it is a flat surface like square, circle, triangle, that will be your 2D shapes. And if it will be like a 3D shape, like you can say, it is cone and so on. So first of all we will be going to discuss about the triangle. So your chapter of discussion will be today is triangles. So in triangle, basically you know what is triangle. It is a closed figure surrounded by three straight lines having three angles, okay, three vertices. Okay, so basically in junior classes we had already discussed all the basic features and what are properties of triangle. So just a quick revision of that one, because it is not required in this classes, but you should have the idea of all that one. See what is triangle. Triangle होता क्या है? Triangle का हमारे पास तीन vertices हैं, तीन angle होते हैं. ये सब बेसिक चीजें जो हमको पता होनी चाहिए. दूसरा, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज हमको पता है कि इधर इट विल बी ए स्केलिंग ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल. स्केलिंग ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी. इसी में एक प्रॉपर्टी आपके आ जाती है, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, दो साइड इक्वल है, तो इसके दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं. ये सब हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है. देन डिपेंडिंग अपॉन द एंगल देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन लाइक एक्यूट एंगल. व्हाट इज एक्यूट? लेस देन 90. राइट एंगल इक्वल टू 90. ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90. देन more than 90, less than 180 degree. Straight angle, it is 180 degree. Then one is reflex angle. What is that reflex angle? More than 180, less than 360. So all these are, we had already studied. Complementary angle. What is complementary angle? Sum of the angle to corresponding two angles will be 90. Supplementary, it will be 180 sum. So these are all we had already discussed. Now we will go in deep with the triangle part. And one more thing before moving on that, we'll discuss this in detail in the second unit, but before that we have to discuss some theorem. But rough idea I'll give you. What is congruent triangles, and what is similar triangle? So when we say congruent triangle, वो ट्राइंगल या वो फिगर, कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसका एग्जैक्ट डायमेंशन सेम हो, शेप सेम हो, साइज सेम हो. तो उसे जैसे सेम ये एक बुक है, सेम इसी तरह की दूसरी बुक होगी, दैट विल बी अ कॉन्ग्रुएंट थिंग. यानी कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है लाइक दिस. तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तब बोला जाएगा जब दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. यानी कि अगर इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो दे विल बी एग्जैक्टली सेम. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. लेकिन जब हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है कि दोनों शेप में सेम होंगे, बट इट इज नॉट इक्वल दैट कि हमेशा उसका साइज सेम हो. क्योंकि जैसे सपोज करो ये और ये, दिस कैन बी अ सिमिलर ट्राइंगल. सिमिलर हो सकता है अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और आपका कि जो ये साइड्स हैं आपके प्रोपोर्शनल में है,
तो we can say that the triangle is similar. Suppose if angle A, suppose A, B, C, D, E, F. If angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. And AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF. So ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. ठीक है, तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही डिफरेंस है कि कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इट इज एग्जैक्टली सेम, बट इन केस ऑफ सिमिलर इट विल बी सिमिलर टू दैट इन देयर मतलब शेप, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू देयर साइज. तो हम ये एग्जैक्ट, इससे हम ये कंक्लूजन निकालें या हम कह सकते हैं कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होगी ही. ठीक है, अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगी, लेकिन अगर कोई चीज सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आई मीन इट कैन बी, इट कैन नॉट बी. तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई चीज सिमिलर ट्राइंगल्स है या सिमिलर सर्कल है तो वो आपके कॉन्ग्रुएंसी को क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे, लेकिन अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली सिमिलर होगी ही. ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी जो डिस्कस करना चाहती थी मैं बिफोर मूविंग ऑन द टॉपिक. सो बेसिक ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस सिमिलैरिटी हम और चीजें डिस्कस करेंगे, और फिर क्या सिमिलर ट्राइंगल कैसे प्रूव करते हैं, क्या बेसिक क्राइटेरियाज है आपके बुक में, जैसे AA सिमिलैरिटी, AAA सिमिलैरिटी, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. So today we'll be discussing the result of this whatever I have told you about the similar triangle, कि उसके थ्योरम्स हैं हमारे, कुछ ट्राइंगल का बेसिक थ्योरम्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो ये है आपका थ्योरम 1, ठीक, जिसे कि हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इसमें आपका थ्योरम बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. इसमें बोला कि कोई एक ट्राइंगल है, सपोज इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम जो कि पैरेलल है एक साइड के ट्राइंगल के, और वो किसी अदर टू साइड को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है. ठीक, देन द रेशियो जो कट करने के बाद आपका बचा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो. दोनों साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी. तो हम इसको प्रूफ करने के लिए सपोज ये ट्राइंगल ABC है, ये DE रख लेते हैं. ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है. हमको पहले तो गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है हमको कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के. ठीक है, ये हमको गिवन है. अब हम इसमें क्या करेंगे, और हमको कंस्ट्रक्शन, देखिए ये स्टेप्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इस स्टेप्स पे मार्किंग होती है. तो कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए. पहले थ्योरम क्या कहता है, दैट शुड बी इन द वर्ड, देन देयर विल बी अ डायग्राम. ओके, फिर क्या गिवन है, आप इसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और आपको प्रूफ क्या करना है वो लिखना है. ठीक है, पहले बिफोर कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लेते हैं हमको प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC. ये हमको प्रूफ करना है. ठीक, हमारे पास गिवन है DE है पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है. कंस्ट्रक्शन, हमने क्या किया, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, E से करस्पॉन्डिंग साइड पे दिस AD
सिमिलरली डी पॉइंट से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन ए ई। सपोज इसको डाल दो नाम ई एल एंड डी एम, ठीक। सो दिस आर कंस्ट्रक्शन एंड इसको ज्वाइन कर दो। तो आप जो भी कर रहे हैं आपको लिखना है, सो यू हैव टू लिखना है कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर टू ए डी, सिमिलरली डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड join BE and CD। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो विल गो टू हाउ टू प्रूव इट। मैं इसको रब कर रही हूँ कि इसको प्रूव करेंगे कैसे। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है ना, हमको साइड्स जो है वो सिमिलर प्रूफ करना है। तो जब तुमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। अब जिस ट्राइंगल में मैं बोल रही हूँ उस ट्राइंगल को आप देखेंगे एंड विल डिसाइड। ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में एरिया क्या होगा। सपोज area of triangle ADE is equal to half base, suppose कर लो AD into height is EL, ठीक। Similarly when we go for the area of triangle this one BDE, this one, ठीक, area of ट्राइंगल बी डी ई, तो इसमें क्या है, हाफ बेस बी डी, हाइट इसका क्या है ई एल, ठीक। ये हो गया सॉरी। सिमिलरली अब इस घर के ट्राइंगल का एरिया भी देख लेते हैं सब। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन सी डी ई, इस वाले ट्राइंगल का एरिया सी डी ई इज half base is EC, CE into height is this one DM, ठीक। अब उसी तरह से जब हम उसमें करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, हम इसमें लिया हमने, ठीक। अब हम इसको लेंगे तो ये वाला भी एरिया सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED को हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज AE इंटू DM, ये लिख सकते हैं। तो अभी हमने 4 बेसिक एरियाज निकाले इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, इसका। तो ये देख रहे हैं कि जो दोनों ADE है या AED है इज इक्वल ओनली, ठीक है। एरिया ऑफ ADE is equal to area of triangle sin AED, दोनों सेम ही है, ठीक। यानी कि इस पॉइंट से ये दोनों सॉरी ये और ये सेम हो गया। अब ना नेक्स्ट इज व्हाट, एरिया ऑफ बी। अब जब हम देख रहे हैं, हमने कहा कि ये पैरेलल लाइन है और इस पे ये 2 ट्राइंगल है। तो जब भी हम एक थ्योरम छोटी क्लास में 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी ट्राइंगल दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलेगा, दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होगा, ठीक। एंड रब दिस वन। तो इस थ्योरम से, बाय दिस थ्योरम वी हैव टू राइट, जब भी हम इसको प्रूव करेंगे हमको ये लिखना है कि whenever they two triangle between the same parallel line have equal area, so area of triangle BDE is equal to area of
ट्राइंगल सी डी ई, ये इक्वल हो गया, यानी कि हाफ बेस यानी कि बी डी इंटू ई एल इज इक्वल टू हाफ सी ई इंटू डी एम। ठीक, ये हमारा हो गया। और हमने इससे पहले वाले उसमें जो हमने जब किया था तो हमारा आया था, जस्ट 2 minutes, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई विल कंटिन्यू नाउ। सो यहाँ तक हमने कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज सेम टू दिस वन। ठीक है, अब हमको जो प्रूफ करना है हम उसमें जाएंगे। हमने किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। क्या था, ए डी ई जब हमने निकाला तो था हाफ बेस यानी कि ए डी इंटू ई एल, सिमिलरली बाय हाफ बी डी इंटू ई एल जो हमने निकाला था। तो ये कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी। ठीक, सिमिलरली दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस यानी कि ए ई डी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ, इसका हो गया बेस यानी कि ए ई इंटू डी एम, सिमिलरली हाफ ए ई, सॉरी हाफ बेस इज सी ई इंटू हाइट विल बी डी एम। तो यहाँ से ये कट हो गया, ये भी इक्वल हो गया ए ई बाय सी ई। अब हम जब ये रेशियो देख रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जो हमने पहले लिखा, और सेकंड जो हमारा इक्वेशन था दैट इज दिस वन इज बी डी ई इज इक्वल टू सी डी ई। तो जब दोनों का ऊपर नीचे का एरिया सेम है तो देयर रेशियो विल आल्सो बी सेम। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल हो गया। तो ऑब्वियसली दिस इक्वल है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी यानी कि ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय सी ई। तो दिस इज ओनली वी हैव टू प्रूव, सो इट इज हेंस प्रूफ। तो हमने इससे क्या, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है और किसी एक साइड के, किसी अपोजिट साइड के से कोई लाइन पैरेलल है तो वो दो जो किसी दो पॉइंट पे काट रही है तो वो उस ट्राइंगल के अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। दिस इज द थेल्स थ्योरम। अब इसको ही तुम अगर आगे करना चाहो तो प्रूफ करके कर सकते हो। ए डी, सपोज ए डी बाय बी डी प्लस वन, सिमिलरली ए ई बाय सी ई प्लस वन, बोथ साइड हमने ऐड किया तो ए डी प्लस बी डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई बाय सी ई। ए डी प्लस बी डी यानी कि ए डी प्लस बी डी इज ए बी बाय बी डी is equal to AC by CE. So this is the second thing you can prove from this. So by this we had discussed what is Thales theorem and how we have to prove it. ठीक है, अब इसका एक कॉन्ट्रेरी भी कह सकते हैं कि ये तो थेल्स थ्योरम था। ठीक, अब इसका कॉन्ट्रेरी क्या हुआ हमारा कि सपोज करो एक ट्राइंगल है और उसकी एक लाइन है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो क्या वो
तो वो जो लाइन जो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है वो अपोजिट साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। इट मींस कन्वर्स ऑफ थिस थ्योरम से if a line divides any two sides into equal ratio then the line must be parallel to the third one irrespective of the anything। यानी कि अगर कोई ऐसी लाइन है ट्राइंगल की जो किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये ट्राइंगल है ABC, ये एक लाइन है DE, ठीक। अभी हमको गिवन है कि AD और BD इज इक्वल टू AE और EC, ठीक। हमको ये गिवन है कि ऐसा है, सपोज सॉरी गिवन है कि ये AF इज इक्वल टू FC, ठीक, ये गिवन है। लेकिन ये नहीं गिवन है कि वो लाइन पैरेलल है। लेकिन हमको थेस थ्योरम से ये पता है कि कोई एक लाइन होती है जो पैरेलल होती है तो वो इक्वल साइड में डिवाइड करती है। सपोज कर लो एक DE जो है वो लाइन जो है वो पैरेलल है हमारे BC के। अगर DE पैरेलल है BC के, ठीक, तो ऑब्वियसली बाय थेस थ्योरम साइड AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक, ये होगा बाय थेस थ्योरम। बाय थेस थ्योरम ऐसा होगा। लेकिन हमको गिवन है कि AD बाय BD जो हमको थ्योरम में गिवन है AD बाय BD है वो इक्वल है AF या FC के, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि AE बाय EC इक्वल होना चाहिए AF बाय FC के, ठीक है, AF या FC के, ठीक। अब मान लीजिए इसमें दोनों में हमको दिख रहा है कि AE बाय EC इज इक्वल टू AF बाय FC, ठीक है। तो ये दोनों जब हम इस तरह से देखेंगे तो ऑब्वियसली इसको जब तुम ऐड कर दो, सपोज +1 बोथ साइड, तो AE प्लस EC बाय EC इज इक्वल टू AF प्लस FC बाय FC। तो AE प्लस EC इज इक्वल टू AC ओनली, AC बाय EC is equal to AF plus FC is also AC by FC। तो AC से करिए, यानी कि 1 by EC is equal to 1 by FC। तो यहाँ से पता चल रहा है कि EC is equal to FC, यानी कि जो EC है और ये FC इक्वल है, और ये तभी इक्वल हो सकती है when E and F is at same point, यानी कि same this line is पैरेलल तभी हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो ऑलवेज डिवाइड जो करेगी किसी इक्वल रेशियो में तो लाइन हमेशा पैरेलल होगी द थर्ड साइड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल का फर्स्ट एक्सरसाइज का दोनों थ्योरम। सो वन वी हैड डिस्कस्ड द थेल्स थ्योरम, अनदर वन इज द कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है, मैं एक दो डिस्कस कर लेती हूँ। सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, इसका दिया हुआ है साइड MC, ये 2 सेंटीमीटर, दिस वन 2 सेंटीमीटर AM, ये 4 सेंटीमीटर BC, और ये पूरा दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ BN हमको ये निकालना है, ठीक। जब इसको सॉल्व करने का जब थेल्स थ्योरम हमको इसको नेम कर दो ABCDE, ठीक। थ्योरम्स के अकॉर्डिंग AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE, ठीक। फिर उसके बाद जब क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि AB बाय BD इज इक्वल टू AC बाय EC बाय थेल्स थ्योरम ओनली। AB कितना है हमारा, AB 4 + 2 6 बाय BD इज 4 इज इक्वल टू AC is 7.5, दिस इज X, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो इसी जो भी थ्योरम्स मैंने डिस्कस किया या
कॉन्ट्रेरी ऑफ द थ्योरम ही डिस्कस किया, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो प्लीज फॉलो दैट एक्सरसाइज। अगर दो साइड्स दी हुई हैं, दोनों साइड को इक्वल इंटरसेक्ट कर रहा है तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। सिमिलरली अगर दो लाइन पैरेलल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो यू हैव टू कैरी ऑन एंड यू विल कैन डिस्कस द क्वेश्चंस। So I'll request you all to go through the exercise. If any of the thing you find it doubt, just text me or you can just tell me what is the doubt. One more small theorem is there that I'll discuss and then we'll stop for the day. One is midpoint theorem. Midpoint theorem. So this is basically, it is dragged from that only, so we'll finish it off and then we'll move to the next one tomorrow. Suppose एक ट्रायंगल है ABC, इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट थ्योरम में बोल रहा होता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोला कि किसी दो साइड के जो मिड पॉइंट है अगर कोई उसको ज्वाइन करती है लाइन, तो दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू BC। ये हमको प्रूफ करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूफ करना है। और गिवन है कि गिवन क्या है, D एंड E मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, AB और AC का मिड पॉइंट है D और E। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली AD इज इक्वल टू BD और AE इज इक्वल टू CE। तो AD by BD is equal to 1. Similarly, AE by CE is also equal to 1. जब दोनों का इक्वल है तो जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा, तो यानी कि AD by BD is equal to AE by CE। तो इसका मतलब जब ये इक्वल है तो यानी कि ये so by converse of Thales theorem DE is parallel to BC. This is only the basic your midpoint theorem. Midpoint theorem कुछ नहीं है, बस ये कहता है कि अगर किसी दो साइड का अपोजिट साइड का मिड पॉइंट्स पे है तो वो जो लाइन है वो थर्ड के पैरेलल होगी। So this is how we had discussed the three theorems. First is Thales theorem, converse of Thales theorem and midpoint theorem. So based on this there are some questions on your textbook and exercise, so practice it all, and if any doubt you just text me, otherwise we'll move to the next topic tomorrow, that is angle bisector theorem and that similarity of triangle. So hope you all are doing good and belated happy Dashara. So from tomorrow we'll be continuing the class regularly till your next festival. So because time is less, so keep practicing more because we have lot of syllabus is there, so we'll cover it off, and if you are not doing practice then you will be lag behind. So kindly do practice on this. So till then you be at home, be safe and enjoy. Thank you.